Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Students, how are you all? I hope that you are good, right? So students, we are on chapter number 18, is known as nuclear physics. So today we are going to study our topics. One is that nuclear fusion, what is nuclear fusion, and other is nuclear fission. Nuclear fission, we have discussed what is nuclear fission. What is nuclear fission is when a heavy nuclei converted into two small nucleus or two small nuclei, this process is known as fission. And when two light nuclei combine to form a heavy nucleus, this process is known as nuclear fusion. Now we have discussed fission, what is fission and what is fusion. Fission is when a heavy nuclei converted into two small nuclei with the release of heat or with the release of amount of energy is known as fission reaction. And what is fusion reaction? When two light nuclei combine to form a heavy nucleus with the release of energy is known as fusion reaction. Now, for example, let's just take two bubbles. Let's just take two bubbles. They are having very light mass, ठीक है, वॉल्यूम, एनीथिंग. सो इफ़ अगर हमने दो बबल्स ले लिए, ठीक है, वो कंबाइन होंगे तो दे फॉर्म अ लार्ज बबल, ठीक है. नाउ when we take two balls, can they convert it into one hard ball or big ball? No, because they have higher mass and they are hard. That's why balls cannot be converted into those small balls cannot be converted into big ball. But this is only just an example that what is fusion. When two small nuclei are converted into big nuclei with the amount of heat energy is known as fusion reaction. Now what we can see here, when two nuclei form a large nucleus, so what happened, the mass of larger nucleus than this mass, ठीक है, the mass of larger nucleus is less than this, ठीक है, mass of two nuclei, ठीक है, वो जो two nuclei से one nuclei जो form हुआ है उसका जो mass है वो क्या है, bigger है as compared to these nuclei. So what we can see, this loss in mass appear in the form of energy, ठीक है. What we can see, this loss in mass, इसके इन दोनों से एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है, बिग न्यूक्लियस, पर इसका मास इससे कम होगा, जो मास से होगा इसका कम होगा तो इससे एनर्जी रिलीज होगी. देन दिस लॉस ऑफ मास appears in the form of energy, ठीक है, self sustaining fusion, ठीक है. बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, दिस रिएक्शन इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है, बट एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ पॉसिबल ओनली इन एनवायरनमेंट, ठीक है. एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, एनवायरनमेंट में, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग सन्स. वन सच साइकिल इज़, इसका एक साइकिल डिस्कस करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने सन ले लिया. सन में क्या होता है, सन कंटेन फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस, जिसकी वजह से हीट भी होती है, एनर्जी होती है, ठीक है, रिएक्शंस होते हैं, तभी हमारे तक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हीट नहीं, हमारे तक एनर्जी के जो होती है वो आती है, क्योंकि जो उससे हीट निकलती है, ठीक है. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सन के पास जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी इंसान या एनिमल कुछ भी चीज़ सस्टेन नहीं कर सकती, लाइव नहीं रह सकती, क्योंकि उसका जो होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस उसमें हो रहे होते हैं. सो व्हाट वी टेक two collisions of proton, ठीक है, first we take in their two collision of proton result in the formation of heavy nuclei, ठीक है, whose collision enter to produce helium, ठीक है. in these two proton collides, ठीक है, these two protons collide and to form a heavy nucleus, ठीक है, whose collision in produce helium nuclei, ठीक है, helium nuclei हो जाएगा. ना आप क्या देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेयर, ठीक है, अर्थ में क्या होता है, अर्थ की लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. हम लोग क्या करते हैं, टू हाइड्रोजन हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम ले लिया, इससे क्या होगा 3 + 1 4 5. तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्रिटियम, तो हम लोग क्या ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसमें हम लोग देख सकते हैं इसके बाद उसका एटॉमिक नंबर किस तरह से आएगा, उसको कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो होगा हीलियम आता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है. तो हम लोग क्या करते हैं, H2 हीलियम है हमारे पास 3 और 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे, H हीलियम 2 × 4 लेंगे, ठीक है, और इसका
जो अमाउंट जो रह जाएगा इन टर्म ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा वो, ठीक है। 2 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम एटम विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर क्या होगा, ये लेस मास होता है, ये हैवी मास होता है, तो इससे क्या होगा, एक न्यूट्रॉन रिलीज़ होगा और एनर्जी भी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी होगी ना, ये इक्वल टू 25.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जो कि बहुत ज़्यादा होगी। और ठीक है, और सन पे टेम्परेचर कितना होता है, 20 मिलियन केल्विन, ठीक है, जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो होता क्या है, सन से ये एनर्जी, ठीक है, सन पर जो टेम्परेचर होता है वो रिएक्शन के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे अर्थ तक पहुँचता है, ठीक है, क्योंकि वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। अगर सन नहीं होगा तो एनिमल्स को हीट कैसे मिलेगी, ठीक है, हम लोग सर्दियों में वार्म अप कैसे होंगे, लाइट कैसे मिलेगी, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसलिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सन पे, क्यों, क्योंकि फिजन और फ्यूजन प्रोसेस होता है। नाउ हम क्या देख रहे हैं, इनिशियल रिएक्शन में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, दिस साइकिल इज़ नोन एज प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसमें क्या होता है कि 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो कन्वर्ट हो गए और साथ में हमारे पास बीटा एमिशन निकली, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन का जो हुए मिले तो ड्यूट्रियम बन गया, ठीक है। फिर 1 हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम मिलकर तो हीलियम बन गया, ठीक है। 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, तो 2 प्रोटॉन फॉर्म करेंगे हीलियम को विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, नाउ ये रिएक्शंस जो है एक ही दफ़ा में नहीं हो सकता, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह इसलिए लिख रहे हैं।